Good morning, girls. We were discussing the discharge of contract. So I already discussed you that meaning of discharge of contract is putting an end to the contract or termination of contract. The contract is said to be discharged when the rights and liabilities created by the contracts are come to an end. So there are various modes of discharge: discharge by agreement, discharge by operation of law, discharge by breach, discharge by performance, discharge by impossibility, and discharge by lapse of time. So we will discuss this point one by one. So this is a diagram for the modes of discharge. Like I said, for example, if it is discharged by performance, then we have two kinds. One is an actual performance and second is an offer to perform, right? Second is a mutual agreement. If you are mutually decide to close the contract, then there are different kinds. One is novation, recession, material alteration, remission, and the waiver. Right. Third is by the operation of law. It is of four kind: insolvency, death, mergers, or alteration. Then by impossibility of performance, how you can do it: initial impossibility or the subsequent impossibility. Subsequent impossibility is further divided into death or personal incapacity, change of law, or change of the subject matter, or end of the subject matter, declaration of war, or non occurrence of the particular thing. By the lapse of time, contract will be discharged. By breach, breach is of two kinds: actual breach and anticipatory breach. And actual breach is further divided into two parts: when the performance is actually due and during the performance of the contract, right? I explained you the main meaning of novation in the last lecture. The essential of novation we did, alteration we completed, recession we did, right? So we were discussing about the modes of recession. I said that it is with a mutual consent you can cancel it. The affected agreed party, or when it is avoidable contract, you can reject it. Right now, next which we have to start today is a remission. Remission means the acceptance of lesser amount or the lesser degree of performance. It is a unilateral act of promisee discharging at his will and pleasure of obligation of another. The law in India is different from in England. In England, person cannot remit unless the fresh promise is supported by consideration. On other hand, in India, a promise may be remit or give up a part of his claim or promise to do so is binding even though there is no consideration for doing so. A owed the last sum to the B. C offered to pay lesser sum in a satisfaction of B claim. B accepted it. It was held that acceptance was in a full satisfaction and B cannot claim the balance from A after receiving the payment in a full satisfaction. तो रिमिशन का मतलब होता है कि जितनी अमाउंट हमारी ड्यू है उससे कम अमाउंट हम लोग क्लेम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कम अमाउंट लेकर, कम परफॉर्मेंस लेकर उसको एंड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी से 20,000 रुपीज़ का लोन लिया था, अब ए उसको रीपे नहीं कर सकता. ए ने बी को कहा कि मेरे बिहाफ पे जो है वो सी पे करेगा और वो भी आपको पे करेगा 19,000 रुपीज़, राइट? और अगर बी इसके लिए राजी है, अपनी एग्रीमेंट देता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिमिशन. इट मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर अमाउंट. एंड if the creditor is agreed to take a lesser amount, then contract will be end at a lesser amount, right? Next is a waiver. Waiver means the abandonment of right. अपने कुछ rights को अपनी मर्जी से खत्म करना या sacrifice करना. You have some rights and you are sacrificing your rights for someone, right? A party to contract may waive his right under contract, whereupon the other party is released from his obligation. To constitute a waiver, neither an agreement nor an consideration is necessary. वेविंग का मतलब होता है कि हम अपने कुछ राइट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में. अगर हम कुछ अपने राइट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब जो दूसरी पार्टी है उसकी ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. जैसे ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा, राइट? और बी ने लेटर ऑन कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पेंटिंग की. सो बी ने यहाँ पे
पैसे भी दे दिए हैं एक हो, फिर भी वो कह रहा है कि पेंटिंग की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट हमारा यहीं पे एंड हो रहा है, मैं अपने राइट्स को सैक्रिफाइस करता हूँ, आप मेरी पेंटिंग मत बनाइए, ना ही मुझे पैसे वापस कीजिए। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि बी ने अपने जो राइट्स हैं उनको अबंड किया है, सैक्रिफाइस किया है, और अगर वो ऐसा करता है तो ए इज नो लॉन्गर टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, राइट? Next is accord and satisfaction. Accord means a promise to accept less than what is due under the old contract. ठीक है, जैसे हमने रिमिशन में मतलब किया, ये भी कुछ उस तरह से ही हमें समझा रहा है। वर्ड सिर्फ डिफरेंट है, जो मीनिंग है वो सेम है। अकॉर्ड का मतलब है प्रॉमिस टू एक्सेप्ट अ लेसर देन व्हाट इज ड्यू, राइट? एंड अगर आप अपनी बुक से एक्सप्लेनेशन देखें, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। A owes B rupees 1000 and B agreed to accept 750 in full satisfaction. The agreement to pay rupees 750 is accord and the actual payment, मतलब accord must be followed by the satisfaction. So what is the meaning of satisfaction? Satisfaction means the payment or the fulfillment of the similar obligation. ठीक है, जो आपने यहाँ पे प्रॉमिस किया कि आप लेसर अमाउंट दोगे, उसको आप दे भी रहे हो। जब आप उसको दे दोगे दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेटिस्फेक्शन। जैसे इसने कहा कि 1000 रुपया ड्यू था, उसकी जगह आप उसको 750 रुपये दे रहे हो, वो कह रहा है कोई बात नहीं, आप 750 दे के ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कीजिए। तो इस तरह अगर वो 750 दे देगा तो इट मीन्स अकॉर्ड इज फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन। अगर अकॉर्ड के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिएगा पॉइंट की अपनी बुक से। Accepting any other satisfaction than the performance originally agreed is known in English law as accord and satisfaction. Accord means the promise to accept lesser than what is due under the old contract. Satisfaction means the payment and the fulfillment of the smaller obligation. An accord is unenforceable, but an accord followed by the satisfaction discharges the pre-existing obligation. Right? Now, next is uh, discharge by the performance. Right? In your book, it is given it is discharged by the performance. Let's find out where it is. Okay. The slide of the discharge by performance is missing, so I will explain you. The second category is the discharge by performance. सो लास्ट चैप्टर हमारा पूरा परफॉर्मेंस का, हमने उसमें क्या देखा है कि जैसे ही प्रॉमिसर अपने पार्ट की परफॉर्मेंस जो है वो कंप्लीट कर देता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज कम टू एन एंड, राइट? परफॉर्मेंस खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, राइट? एक बारी अपनी बुक से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। Performance of contract is one of the most usual way to discharge the contract. A performance of contract lies in doing or causing to be done what the promisor has promised to do. On the performance of obligation undertaken by the parties, the contract is automatically discharged. Where a party has done what he undertook to do, there is nothing left for him to do. जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो कर चुके हैं और अब उस कॉन्ट्रैक्ट में करने लायक कुछ भी नहीं है। The contract is terminated when both the party completely perform the exact thing each has agreed to do, and if one party only performs his promise, he is only discharged, and he acquires a right of action against the other who is a guilty of breach. ठीक है, अगर एक पार्टी परफॉर्मेंस दे देती है, दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस नहीं देती है, तो अभी ये डिस्चार्ज पर परफॉर्मेंस नहीं हुआ जब तक दूसरी पार्टी भी अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं कर लेती। When a party has performed his promise but offered to perform the said promise in favor of promisee, he will deem to have performed the promise. An adequate offer of performance amount in law to performance itself, and in case of non-acceptance by promisee, the promiser would be discharged from obligation. ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि अगर आपने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया है और प्रॉमिसी ने उसको लेने से मना कर दिया है तो यू विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो ये डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस का पॉइंट बहुत छोटा दिया हुआ है। उसका रीजन ये है कि एक चैप्टर में उसने उसको बहुत फुल फ्लेज तरीके से समझाया हुआ है, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ।
तो लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंगली कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। सबसे पहला आता है इंसॉल्वेंसी। अगर पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कोर्ट उसे कहती है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं रख सकता और ना ही वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट। Upon insolvency, the rights and liability of insolvent are, with certain exception, transferred to the officer of the court known as the official assignee in presidency towns and official receiver in other areas. ठीक है, जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हो गया उसके जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं ऑफिशियल असाइनी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, राइट, या ऑफिशियल रिसीवर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, राइट। मर्जर्स, it occurs when there is a acceptance of higher security in place of lower. It is an operation of law which extinguishes a right by virtue of its coinciding with another or greater and same person. For example, A holds certain property under lease, subsequently he buys the property. His rights as a leasee is merged into the rights of ownership now acquired. आपके पास लेसर राइट्स थे जो कि बढ़ के हायर राइट्स पे हो गए हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए ने कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लीज पे ली थी, रेंट पे ली थी। अब ए ने वही प्रॉपर्टी को खरीद लिया, ठीक है, तो अब वो लीजी से बन गया ऑनर, मतलब लोअर सिक्योरिटी से शिफ्ट हो गया हायर सिक्योरिटी पे। तो उसने क्या लिखा हुआ है, इट अकर्स व्हेन देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ हायर सिक्योरिटी इन प्लेस ऑफ अनदर। ठीक है, मर्जर करना, जैसे कंपनीज अपने से छोटी कंपनी को अपने में मर्ज कर लेती हैं, खरीद लेती हैं उसको, ठीक है। सो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि एज ए लीजी आपके सारे राइट्स एंड लायबिलिटी वहां पे खत्म हो जाते हैं जब उस आप प्रॉपर्टी के ऑनर बन जाते हो। तो यही लाइन इसने लिखी हुई है, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ लॉ विच extinguish a right by virtue of its coinciding with another and greater right in same person. तो लॉ कहता है कि आपके प्रीवियस राइट्स एंड लायबिलिटीज खत्म हो जाते हैं क्योंकि आपने वही चीज को परचेज कर लिया है, आपने उसी चीज को मर्ज कर लिया है, राइट। Alteration. This alteration is different from the alteration which we did under the discharge by agreement. Alteration of the written contract made without the consent of other party has an effect of discharging the contract provided alteration in the material part. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखते वक्त कोई ऐसी गलती कर दी, कुछ ऐसी गलती कर दी जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा नेचर ही चेंज कर देती है, ठीक है। जैसे आपने किसी से 25,000 रुपीज लेने थे और आपसे जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने लगे आपसे वहां पे लिखा गया 2500, तो दैट पर्सन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू गिव टू यू अ 2500, नॉट 25,000, बिकॉज यू हैव रिटन, you have altered, you have made a mistake, right? उसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 25,000 हैज ऑल्टर्ड टू वन ऑफ 2500, द बिल्स बिकम बैड इन लॉ एंड क्रेडिटर कैनॉट इवन आस्क फॉर डिग्री ऑफ 2500, राइट। ये पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट की सेंस को चेंज कर देते हैं। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लिखे उसमें डेट, अमाउंट, सिग्नेचर बहुत ही ध्यान से लिखिए। डेथ हो जाती है और जहाँ पे पर्सनल स्किल्स और नॉलेज रिक्वायर्ड है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, फॉर एग्जाम्पल कोई पेंटर है, उसने प्रॉमिस किया था कि वो आपकी पेंटिंग को पेंट करेगा, अब उसकी डेथ हो गई, राइट, अब कोई और पेंट नहीं कर सकता, राइट। सो इस कारण वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, या पर्सन का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, उस केस में भी दिस कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड, राइट। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच, मतलब दूसरा पर्सन अपने परफॉर्मेंस को देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। If any party fails to perform his obligation, there take place a breach of contract. Breach of contract operates as a discharge of contract, and the breach of contract may be actual or anticipatory, right? So पार्टी जिस चीज को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कह रही है मैं नहीं करेंगे, इसका मतलब वो ब्रीच कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट को जानबूझ के कैंसिल कर रहे हैं। तो दो तरह की ब्रीच होती है जी। पहली होती है कि परफॉर्मेंस ड्यू है, ठीक है, और आपने उस परफॉर्मेंस को देने से मना कर दिया है। एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल से समझाऊंगी। When A agrees to deliver to B 20 chairs on 1st May and fails to do so,
ऑन दैट डे। ठीक है, मैंने आपको कहा कि मैं आपको 20 चेयर्स 1 मई को देंगी, बट मैंने वो नहीं किया, तो इट मीन्स जब परफॉर्मेंस ड्यू है मैंने वो ब्रीच कर दी, मैंने वो खत्म कर दी या कैंसिल कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। वो हम बाद में बात करेंगे कि क्या कंपनसेशन होती है, क्या या उसको हम डैमेजेस भी कहते हैं, तो वो क्या होती हैं, राइट। दूसरी कैटेगरी है कि परफॉर्मेंस अभी ड्यू नहीं है और उसके पहले ही आपने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, ब्रीच ड्यूरिंग, ठीक है, ये है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप एडवांस में रिफ्यूज कर सकते हैं, राइट। एक और है कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस चल रही है, आपने आधी परफॉर्मेंस दे दी है, आधी चीजें डिलीवर कर दी हैं और आधी चीजें आप डिलीवर नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सी एग्रीड टू सप्लाई टू रेलवे कंपनी विद 3900 रेलवे चेयर्स आफ्टर 1787 चेयर्स डिलीवर्ड, रिमेनिंग चेयर्स देने से उसने मना कर दिया। तो यह है कि चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट में आपने रिमेनिंग गुड्स को देने से मना कर दिया है, राइट। इसमें आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, बिकॉज कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कर सकता, बट अगर उसने किया है तो यू कैन क्लेम अ डैमेजेस। एंटीसिपेटरी में आपको बता रही थी कि अभी परफॉर्मेंस ड्यू नहीं हुई है, आपने पहले ही उसको बोल दिया है कि आई विल नॉट परफॉर्म दिस। ठीक है, फिक्स टाइम आने से पहले ही आपने मना कर दिया, राइट। उसमें क्या होगा, जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 1 जनवरी को 500 क्विंटल्स ऑफ व्हीट जो है वो डिलीवर करेगा 1 मई को, राइट। 15 अप्रैल को उसने लिखा कि नहीं, मैं नहीं डिलीवर कर सकता, तो ये क्या है, एंटीसिपेटरी। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला कि अंडर सेक्शन 39 अगर उसने आपको ड्यू डेट से पहले ही परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को उसी दिन जो है वो रिसेंड समझो, उसी दिन खत्म समझो। ठीक है, जैसे उसने 15 अप्रैल को आपको डिलीवरी देने से मना कर दिया है, तो आप क्या करोगे, आप उसी पर्टिकुलर डेट को आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करोगे। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसको 1 मई तक ऑपरेटिव रखो। ठीक है, आप अज्यूम करो कि शायद वो परफॉर्मेंस दे दे। ठीक है, 1 मई तक आप वेट कीजिए, 1 मई के बाद अगर वो नहीं करता है तो उसको ब्रीच समझिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, या तो आप उसी डेट को उसको कैंसिल कंसिडर कीजिए, या आप एक्चुअल ड्यू डेट का वेट कीजिए और उस पर्टिकुलर डेट को उसको कैंसिल कंसिडर कीजिए। ठीक है, अब इन सब के केसेस में हमें डैमेजेस कैसे मिलती हैं, बिकॉज दूसरा पर्सन आपने तो परफॉर्मेंस दे दी, पर दूसरा पर्सन अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी नहीं है, तो किस तरह आपको कंपनसेशन मिलेगी डैमेजेस के रूप में। तो 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, देखिएगा। If the repudiation of contract is accepted and the contract is put to an end immediately, the damages will be measured by the difference of price prevailing on the date of breach and contract price. अगर तो आपने उसी डेट को वो ब्रीच कंसिडर कर ली कि वही पर्टिकुलर डेट है, फॉर एग्जांपल अगर 15 अप्रैल को उसने आपको मना कर दिया, तो 15 अप्रैल में जितना मार्केट प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का और जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वो आपको एज ए कंपनसेशन, एज ए डैमेजेस दिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड केस में अगर आप इसको ऑपरेटिव रख रहे हैं 1 मई तक, तो क्या होगा कि 1 मई को जितना मार्केट प्राइस होगा और जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो आपको एज अ डैमेजेस दे दिया जाएगा। तो चाहे वो एक्चुअल ब्रीच हो, चाहे ब्रीच ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, सब केसेस में दूसरी पार्टी को जो है वो कंपनसेशन या डैमेजेस देनी ही पड़ती हैं, बिकॉज इट्स देयर फॉल्ट। राइट, देखिए एंटिसिपेटरी को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, premature destruction of contract rather than a failure to perform it। ठीक है, तो उस डेट फेलियर नहीं हुआ है, उसने पहले ही बता दिया है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। सो 2 तरह के डैमेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए, राइट। ओके, नाउ
द नेक्स्ट इज द डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो हो सकता है कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए हैं कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है परफॉर्मेंस के लिए, राइट। तो उस केसेस में क्या होता है कि पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके बुक से कर लेते हैं। Impossibility of performance result in a discharge of contract agreement which are impossible in itself are void. Because void contract में हम कहते थे ना there is a supervening impossibility of performance, ये वही explanation है. Because law does not compel the impossible. Thus, a promise by A that he will raise a mango tree in an hour in a bee garden by invoking some mantra is a void. मैंने आपको कहा कि आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, मैं आपके गार्डन में 1 घंटे में मैंगो ट्री जो है वो उगा के दूंगी. So it is impossible, right? The impossibility referred here must be in existence at the time when the contract is made or may not known to both the parties at that time. इम्पॉसिबल बात आपने वहां पे की है जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं. इफ हाउएवर द प्रॉमिसर अलोन नोस द इम्पॉसिबिलिटी देन एग्जिस्टिंग, अगर इनमें से एक पार्टी को ये पता है कि ये नहीं हो सकता और दूसरी पार्टी ये अज्यूम कर रही है कि शायद ये हो जाए, तो क्या होता है. ठीक है. सो जिसको इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि मैं आपको हॉर्स सेल करूंगी, घोड़ा आपको सेल करूंगी, और वो घोड़ा एक्चुअल में है ही नहीं, तो मुझे तो पता है ना कि मैं जो आपको परफॉर्मेंस देने के लिए बोल रही हूँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है सब्जेक्ट मैटर, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी, दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. ये हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हमें ये देखना पड़ेगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाकई ही रियल है या हमने वो क्रिएट की हुई है, राइट. इसमें एक वर्ड आता है डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, अंडर सेक्शन 56. इंपॉर्टेंट है ये, प्रिंसिपल ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी हम इसे कह सकते हैं. और फ्रस्ट्रेशन होती क्या है? फ्रस्ट्रेशन मीन्स द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्ड इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस बाय एक्सटर्नल कॉजेज बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टी. फ्रस्ट्रेशन का यहाँ पे मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, बिकॉज वो परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती है. और उसका कारण क्या है? कुछ ऐसे कारण जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं. ठीक है, जैसे ए ने बी को कहा कि मैं तुमसे मैरिज करूंगा, और जो है वो मैरिज की डेट से पहले बी की डेथ हो जाती है, तो ये तो एक्सटर्नल कॉजेज है ना, जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते. या आपने कोई सामान डिलीवर कराना है और उस कंट्री में जो है वो कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ये क्या है? दिस इज द कॉजेज विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. In order that doctrine of frustration as embodied in section 56, the following condition must be fulfilled. सबसे पहले act impossible हो गया, impossibility कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए नहीं की गई, सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी हुई है ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. ठीक है, जैसे उसने लिखा हुआ है दैट ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज, ए गोज मैड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड. ये बी एग्जांपल भी देख लीजिए. उसने कहा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट एज अ theater for 6 months in consideration of sum paid in advance by B. On several occasions, A is too ill. अगर किसी ने ये कहा है कि मैं आपके थिएटर में परफॉर्म करूंगा, बट वो परफॉर्मेंस से पहले अगर बीमार हो जाता है या उसको बहुत ज्यादा वो गा ही नहीं सकता है ड्यू टू हिज हेल्थ, राइट, तो हम उसे कहेंगे देयर इज अ दिस इज नॉट अ सेल्फ इंड्यूस इम्पॉसिबिलिटी, राइट.